सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हमारा इंटरव्यू था एंग्लो ईस्टर्न का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा गया इंटरव्यू मेरा एंग्लो ईस्टर्न का। सो अभी चलते हैं मेरे दोस्तों के पास, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एंग्लो ईस्टर्न की कंपनी में। सो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। चलो गाइस आ जाओ। सो गाइस ये हमारे जॉर्ज मैक्सवेल अजमेर राजस्थान से। सो भाई मुझे आप बता सकते हो कि आज आपका एंग्लो ईस्टर्न में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपको? Okay, so today we had our Anglo-Eastern interview. So basically the questions have been normal questions they ask. First, they have an interview on video call. We have separate room for that. By our serial number, we write our serial number and just show in the camera, and they identify us. Firstly, they introduce that okay, tell me your number, and we just say our number and they ask normally we have to remember that what they are asking, you should reply only that answer only. Don't reply on your own. As in my condition, he asked me what's your father name. I just said my father name. I don't said my mother name. And when actually when my friend has happened, it's like that he asked his father name and just he told about his mother also. So he warned him that will answer only that question which I asked. So please remember which the question the interviewer asked, answer that only. So mainly he asked about your family background, and next he asked me about what do you know about Anglo-Eastern. So I just said that this is a shipping company and this is good and so and so, and facilities are good. And one of my friend is also sailing in Anglo-Eastern. So and so I have to मुझे पता था Anglo के बारे में. I just uh, told him. Next, he asked about my parents, what your parents are doing, and he asked about my 10th and 12th percentage from where I studied and all. And from the technical part or from the GP rating part, he asked me the four questions. Basically, you have to study the whole lines while mooring we are using headlines, stern lines, spring lines. He asked me about the headline that the what is the use of headline. So I answered that headline is used to prevent the ship going stern. And next, he asked me about what do you mean by shipping. So shipping, जैसे ही उसने पूछा, I have lots of ideas in my mind, and I just answered that so shipping is the process and which can transfer the goods from one country to another country, the cheapest way, and we can transfer. And जो आप बता सकते हो उसको ट्रैप करो उसके अंदर जितना मैंने था मैं इस पे करता करता and I just slipped to the types of ship. I just introduced saying types of ship and he was listening me very carefully. I just introduced types of ship, bulk carrier, tankers, oil tankers and all. He was impressed. Next he asked me about the departments on board ship. So basically there are three departments. One is deck, second is engine and third is saloon. I answered very well. And thirdly he asked me that what is the use of saloon department. So basically all know that saloon department is main for cleanliness and it's provide food for the and make food for the crew and not much. And after he concluded with me and that's it, thank you can go. And after the interview I just rushed to the computer lab for having my exam. And firstly I have the MCQ based 100 question, 1 mark each, which includes mathematics, little mathematics up to the 10th level also, percentage ratios and all. And next the science little bit, and the normal that general knowledge about the shipping, that where how many which country has which capital and all, which oceans we should cross while going from this country to another country. And the next test was the psychometric test, in which all the questions were all same. We have to select agree, disagree, or strongly agree, strongly disagree. It's the kind of situation we get that, for example, if you are on the ship, what you're going to do if someone said that is not doing his work properly, or just like situations are created there. And one of the questions I remember the most, that what will you do if the bosun is made one day captain? अगर बोसन को एक दिन के लिए कैप्टन बना दिया जाए तो what will you do? One of my friend also saying this, discussing this, that interview asked the question. The basic question I have learned. So
उससे पूछा गया कि उसमें क्या होगा। बोसन एक दिन के लिए अपना कैप्टन बन गया। सो कैप्टन बन के उसने आपको बोला कि जस्ट डू द वर्क, आई विल प्रोवाइड द परमिट इन द इवनिंग, सो यू विल स्टार्ट द वर्क इन द मॉर्निंग और नॉट। सो बेसिकली I answered, or one of my friend answered that, no sir, I will not start the work without permit. So please remember, while using or before doing any work, if it requires a permit, you should take the permit first and then proceed to the work, because safety is more important. Thank you. So That's all from overall your exam and interview all were good. Yes, definitely. So let's see how gonna be the result of for the first lead. Waiting for the good Yes, I'm result. also waiting for the result. So thank you so much for giving this Thank you. Welcome. Bro. opinions. So guys, ये हमारे यश टंडेल वलसाड़ से। सो भाई आप मुझे बता सकते हो आपको आज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में एंग्लो ईस्टर्न के? बस मैं गया, उसके बाद मेरे को वो नंबर था, इंडेक्स नंबर, वो दिखाने को बोला, मैंने दिखाया, 144 था। और सबसे पहले मेरे को पूछा फायर अलार्म क्या है, तो मैंने बताया फायर अलार्म इज अ कंटिन्यूस रिंगिंग बेल। उसके बाद पूछा फादर क्या करते हैं, फिर पूछा कोई है फैमिली मेम्बर इन मर्चेंट नेवी में, वो भी मैंने बताया। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन किया व्हाट इज SCBA, उसके बाद EEBD पूछा, उसके बाद MOB मार्कर पूछा। फिर मेरे को बताया कि अगर तू डिग पे जाने वाला है तो हैवी वेदर होगा तो तू क्या करेगा, तो मैंने बोला कि ड्यूटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करूँगा, उसके बाद एक पर्सन को लेके काम करने के लिए जाऊँगा। उसके बाद मेरे को पूछा कि परमिट कौन कौन सी होती है, तो मैंने सब परमिट बताई, 6 टाइप की होती है। और फिर मेरे को बोला कि अगर तू हॉट वर्क कर रहा है तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेगा, ये भी मैंने बताया। उसके बाद मेरे को पूछा गार्बेज के बारे में कि तू गार्बेज कहाँ पे फेंक सकता है, मतलब वो भी मेरे को आता था, वो भी मैंने बताया। फिर पूछा, फिर बस इतना ज़्यादा नहीं। फिर पूछा हाँ स्विमिंग के बारे में, डू यू नो स्विमिंग, ऐसा पूछा, वो तो मेरे को आता था, वो भी मैंने बताया। फिर बस इतना ही पूछा मेरे को, बस इतना पूछा। और फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम तो ऐसे दे दिया अभी अच्छा गया वैसे तो, पढ़ के दिया था। उसमें था मतलब उसमें वो मैथ्स और एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह आता है, उसके बाद वो था ना साइकोमेट्रिक था 100 में का। सो तीनों कैसा गया आपका? हाँ अच्छा गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। और वो अगर देख साइड जाना चाहते हो तो पूछेगा कि देख साइड क्यों जाना चाहते हो, और फितर किया है तो फिर देख फितर क्यों बनना चाहते हो, ऐसा वैसा, तो वो भी बताया मैंने सब। सो मतलब तीनों आपका टोटल इंटरव्यू पेपर और साइकोमेट्रिक टेस्ट सब बढ़िया गया। चलो भाई बधाई हो। चलो देखते हैं अभी इंटरव्यू का जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होता है। चलो भाई थैंक यू। थैंक्स मंगल ब्रो, वीडियो बनाते रहो। सो गाइस ये हमारे आलम बहार फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। सो आलम भाई आपको आज के एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आप थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में? गाइस हमारा इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था वीडियो कॉल पे, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। सामने एक कैप्टन थे और 6-7 क्वेश्चन किया था उन्होंने मुझसे। फर्स्ट तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड शॉपी ब्लॉगर पूछा था, मार्पोल पूछा था, और टाइप्स ऑफ पेंट पूछा था, और मंकी आइलैंड क्या है वो पूछा था, और सरफेस प्रिपरेशन फॉर पेंटिंग वो पूछा था, और भी 1-2 क्वेश्चन पूछा था। तो इजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते, सही पूछते। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया हम लोगों ने, साइकोमेट्रिक भी हुआ था, और मैथ्स का भी क्वेश्चन, मैथ्स का और मैथ रीजनिंग भी का। आता है उसमें, और जीके भी आता है। सो तो सही था, मतलब इजी था। सो टोटल आपका तीनों पेपर कैसा गया? बढ़िया। सुपर। चलो भाई बढ़िया है, अभी ऐड करते एंग्लो ईस्टर्न के रिजल्ट का। चलो भाई थैंक यू। थैंक यू। सो गाइस ये हमारे दीक्षित टंडेल नवसारी से। सो भाई आप मुझे बता सकते हो कि आपको आज के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया एंग्लो ईस्टर्न के? हाँ मैं बता सकता हूँ ना। पहले मेरे को
शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, बोला पूछा उन लोगों ने। फिर उन लोगों ने पूछा कि कौन सी साइड पे जाना चाहता है, डेक साइड पे इंजन साइड। मैंने बोल दिया इंजन साइड। तो फिर इंजन रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन पूछे कि मेन इक्विपमेंट ऑन द इंजन रूम। फिर पूछा विच टाइप ऑफ पंप यूज इन ऑन बोर्ड शिप। फिर उन लोगों ने पूछा कि फॉलोअप क्या होता है, नॉन फॉलोअप क्या होता है। फिर उन लोगों ने पूछा कि मेरे से ऑयली वाटर सेपरेटर का काम क्या है। फिर उन लोगों ने पूछा मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरे पापा क्या करते हैं वगैरह सब पूछ लिया। फिर उन लोगों ने पूछा कि इंजन साइड ही क्यों जाना चाहता है, तेरे को मर्चेंट का गाइडेंस किसने दिया। ये सब मेरे को शॉर्ट नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हो गया। फिर इंटरव्यू ख़त्म हो गया। फिर हम लोग को टेस्ट देना होता है, वो साइकोमेट्री टेस्ट होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा रीजनिंग वगैरह करना होता है, मैथ्स वगैरह सब आता है। वो हो जाएगा, कुछ नहीं, ईजी है। सो आपका टोटल ओवरऑल कैसा गया सब इंटरव्यू और बहुत अच्छा गया, पेपर वगैरह सब अच्छा गया? सब अच्छा गया। चलो भाई, चलो जल्द से जल्द, अभी 2 महीने बाद रिजल्ट आने वाली है। सो होप सो सबका हो जाए, अपने भाई लोग का नाम लग जाए उसमें। चलो थैंक्स भाई। थैंक यू। सो गाइज़, ये हमारे कुंदन सिंह धामी उत्तराखंड से। सो भाई मुझे आप बता सकते हैं आपको आज इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया एंग्लो ईस्टर्न के? हाँ भाई, सबसे पहले उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछे। मेनली पहला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन द सार्ट एंड ईपब, उसका बताया मैंने, इजीली सब कुछ हो गया था। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन द साउंडिंग एंड अलेज, वो भी इजी निकल गया। और लास्ट क्वेश्चन उनका था लाइफ जैकेट में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और क्या क्या प्रिंटेड होता है उसमें, वो भी बता दिया मैंने। फिर उनने बाकी चीज़ फैमिली बैकग्राउंड ये सब पूछते हैं, और मेनली वो पूछते हैं कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है, ये बाकी चीज़ें, और बस इतना ही पूछा। और उसके बाद आपका पेपर कैसा गया मैथ्स का और ये साइकोमेट्री का? उसके बाद जैसे इंटरव्यू ओवर हुआ, उनने हमें एग्ज़ाम देने बैठा दिया। एग्ज़ाम में पूछा गया था मैथ्स और इंग्लिश। पहला पेपर था 100 मार्क्स का और दूसरा था 160 समथिंग का। दूसरा पेपर था साइकोमेट्रिक का, उसमें तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी, बाकी तुम कैसे काम कर सकते हो उसके बारे में पूछा गया था। ये 2 क्वेश्चन थे, बस इतना ही था। और बाकी तो 3 क्वेश्चन पूछे, दैट्स ऑल। सो आपका तीनों ओवरऑल इंटरव्यू और जो टेस्ट था दोनों पेपर कैसा गया तीनों ओवरऑल? वो बहुत अच्छा गया। So- इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा गया, और पेपर तुमको थोड़ी एप्टीट्यूड में थोड़ा लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जीपी वाले थोड़े ऐसे ही रहते हैं मैथ्स में, बाकी इंग्लिश इजी रहती है। सो चलो अब वेट करते हैं एंग्लो ईस्टर्न के रिजल्ट का, देखते हैं किस किस भाइयों का लगता है फर्स्ट लिस्ट में। हाँ, ऑल So- द बेस्ट जो भी आ रहा है नेक्स्ट बैच के लिए। सो भाई थैंक यू, आपने थोड़ा इस वीडियो में अपना बताया अपने ओपिनियन, थैंक यू।